Welcome to We Learn Networks. This is session number 12 of subject Management of Machines and Materials, and today we will cover the chapter Planning and Control of Projects. The topic that we will cover in these sessions are projects, network representation of projects, time management of the projects, critical path method CPM, program evaluation and review techniques PERT, time cost relationship and project crashing, resource allocation, and project updating and monitoring. The first topic is projects. Before starting with the projects, I would like you to assume the definition. What do you mean by projects? The term projects means a project as a set of interrelated activities that are organized for a common goal or objective. Means प्रोजेक्ट्स वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम इंटर रिलेट कर सकते हैं आपस में, और ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये ऑर्गेनाइज्ड करी जाती हैं इसीलिए कि हम कुछ एक कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. नाउ consider the following two situations. First is preparing tea and second one is arranging for a tea party. If we look at the above two situations, then arranging for a tea party will require preparing tea as one of the tasks. कि अगर हम अरेंज कर रहे हैं एक टी पार्टी तो टी पार्टी में प्रिपेयर करनी पड़ेगी एक टी, तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है प्रिपेयरिंग टी वो अपने आप में ही एक टास्क है. इनफैक्ट अरेंजिंग फॉर अ tea party will require organization of other tasks such as issuing invitations, procurement of snacks, procurement of cutlery, table arrangement, serving tea, etc. और एक टी पार्टी को अरेंज करने के लिए हमें बहुत सारे टास्क करने होंगे या उनको ऑर्गेनाइज करना होगा. जैसे कि इनविटेशंस हमें इश्यू करने पड़ेंगे, इनविटेशंस भेजने पड़ेंगे अगर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो. स्नैक्स होंगे चाय के साथ में, कटलरी यूज करेंगे मींस किस तरीके के कप्स और प्लेट्स हम यूज करेंगे, टेबल अरेंजमेंट किस तरीके का रहेगा, टी किस तरीके से सर्व करी जाएगी. तो जब हम एक टी पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो ये सारे टास्क भी हमें देखने चाहिए. You will agree that arranging for a tea party is much more complex task consisting of large number of simpler tasks or activities such as preparing tea. We will call arranging for a tea party as a project while we will refer to individual tasks such as preparing tea as activities. So from this activity you can understand what are projects. Projects are basically interrelated activities which we can use to create or complete a particular objective or a goal. Network representation of projects. First step in management of projects is to understand the interrelationship between the various activities which constitute the project. The activities may be interlinked with each other in various ways. जो पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए वो ये होता है कि हम उनके बीच में जो एक्टिविटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और किस तरीके से ये एक्टिविटीज लिंक हैं उनको भी हम अंडरस्टैंड करें. On the other hand, the activity serving tea cannot be started until the activity preparation of tea is completed. Means कि किस तरीके से एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, हमें ये भी पता रहना चाहिए लाइक कि हम टी तब तक सर्व नहीं कर सकते जब तक हमारी टी की प्रिपरेशन ही ना हो. तो मींस एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से हमारी इंटर रिलेटेड रहती है. Unlike the other examples, this dependence cannot be freed by providing additional resources. और unlike और जो बाकी एग्जाम्पल्स की तरह कि हम इस
एक्टिविटी को, इस इंटर रिलेटेड एक्टिविटी को किसी दूसरी चीज के थ्रू भी अलग नहीं कर सकते, ये आपस में डिपेंडेंट ही रहेंगी। कोई एडिशनल रिसोर्स हम इस एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। ड्राइंग प्रोजेक्ट नेटवर्क्स। द इनपुट required to draw project network is the list of activities and their precedence requirement. When considering the precedence requirement, only immediately preceding activity will be listed. They are also called immediate predecessors. ये जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो हम इनपुट रिक्वायर करते हैं ताकि हम एक प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ कर सकें, एक एक्टिविटी होगी और एक उसका प्रीडिसेसर होगा, मींस एक उससे प्रीवियस वाली एक्टिविटी होगी। तो जो प्रीवियस वाली एक्टिविटी होती है हम उसे कहते हैं इमीडिएट प्रीडिसेसर। हम एक एक्टिविटी को थ्रू अ नोड रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू अ नोड, अ सर्कुलर मार्क, उसको हम एक नोड कहते हैं। और दो नोड्स के बीच में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन को हम रिलेशनशिप कहते हैं। नोड लेबलिंग। वंस द नेटवर्क इज ड्रॉन, it is good practice to label the events systematically. A standard procedure is as follows. मीन्स जब हम अपना नेटवर्क सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, नोड्स और लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, तो बेटर रहता है कि हम उन नोड्स की लेबलिंग करना स्टार्ट करें। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो होता है, पहला प्रोसीजर होता है कि अ स्टार्ट इवेंट इज the one which has arrows emerging from it but none entering to it. एक स्टार्ट इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें जो हमारी रिलेशनशिप्स या एजेस जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं पर उसमें कोई अंदर की तरफ आती हुई एज नहीं है, तो वो हमारी स्टार्ट इवेंट होता है। फाइंड द स्टार्ट इवेंट एंड नंबर इट एज 1. सेकेंड इज डिलीट all the arrows emerging from all the numbered events. हर इवेंट में से जो एरोज इमर्ज हो रहे हैं उनको डिलीट कर देंगे। दिस विल क्रिएट एटलीस्ट वन न्यू स्टार्ट इवेंट आउट ऑफ रिमेनिंग इवेंट्स। और एक जब हम ऐसा करेंगे तो एक नया स्टार्ट इवेंट हमारे पास में एमर्ज हो जाएगा। Number the new start event as 2, 3 and so on. Repeat step 2 and 3 until the end event is reached. Consider the diagram in the figure and the above procedure will lead to the following node. Next topic is time management of the project. One of the major requirements of the project management is a feasible time scheduling of the various activities with the objective that project is completed at as early as possible. जो feasibility of टाइम शेड्यूलिंग है वो एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, जो हमें बताती है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी अर्लीस्ट कंप्लीशन डेट क्या है। Feasibility of time schedule will require that an activity be scheduled only when all its predecessors are scheduled. जो feasibility होती है टाइम शेड्यूल की वो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर रिक्वायर इसीलिए होती है क्योंकि हम शेड्यूल कर सकें किसी प्रीडिसेसर को। For preparation of such a schedule, information will be needed about the duration in which the various activities can be completed. और शेड्यूल की प्रिपरेशन के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी किस ड्यूरेशन में कंप्लीट होगी। द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज एक्टिविटी टाइम। जो ड्यूरेशन है किसी भी एक्टिविटी का हम उसको एक्टिविटी टाइम से रेफर करते हैं। Depending on the nature of the activity times, the projects will get classified in two categories. In nature of activity times से पे डिपेंड होके हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट्स कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड हो रहा है। फर्स्ट है
Projects in which activity times can be estimated with sufficient certainty, for example, building a house or erecting a plant. Second one is project in which there is huge degree of uncertainty about the activity times, for example, launching a space vehicle, developing a new product, etc. Time management of the project is the first case, is usually done by using critical path method, and in the second case using program evaluation and review techniques. टाइम मैनेजमेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम बहुत सारे केसेस यूज कर सकते हैं, और उस हम टाइम मैनेजमेंट दो तरीके से देख सकते हैं. पहला जो केस है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा जो केस है वो है PERT टेक्निक हम यूज करें. CPM means critical path method. In this method, it is assumed that activity durations are deterministic or are known with certainty. The method will compute the earliest possible start time and latest possible start time for each activity. ये जो हमारा CPM है, क्रिटिकल पाथ मेथड है, ये वो मेथड है जहां पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि जितनी भी हमारी जॉब्स हैं या फिर जितने भी हमारी प्रोसेस हैं उनकी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, और वो हमें पहले से ही नोन है और सर्टेन है, मींस वो आगे जाके चेंज नहीं होंगी. तो ये जो मेथड है वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम किसी भी जॉब का या फिर लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी का कंप्यूट कर सकें. These activities are critical in the sense that if completion of any of these activities is delayed, even by a short period of time, the whole project will be delayed. जो ये activities critical इसलिए होती हैं, इस सेंस में होती हैं कि ये जो activities अगर इनके completion में थोड़ा सा भी टाइम गैप आता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का भी टाइम गैप आता है, तो वो कॉज करेंगी कि जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरा डिले हो जाए. लाइक एग्जांपल में कि अरेंज कर रहे हैं हम टी पार्टी में सारे लोग आ गए, इनविटेशन हमने भेज दिया, पर अगर हमारी टी ही देर से बन रही है तो उसकी कंप्लीशन डेट भी देर से होगी, मींस हम टी भी देर से सर्व करेंगे. For other activities, slack will be computed, which will give some idea of the relative importance of these activities in term of their time management. और बाकी एक्टिविटीज के लिए हम स्लैक कंप्यूट करते हैं जो एक आइडिया देते हैं कि बाकी जितनी भी एक्टिविटीज उस एक्टिविटीज से रिलेटेड है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. क्रिटिकल पाथ मेथड को क्रिटिकल पाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक पाथ डिटरमाइन करते हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बनाता है जो बहुत ही एसेंशियल होती हैं या फिर उनकी कंप्लीशन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती हैं. क्रिटिकल पाथ इज अ पाथ इन अ नेटवर्क is a sequence of activities which have to be completed sequentially due to precedence requirement. इनकी precedence requirement होती है लाइक कि हमारे पास में 3 एक्टिविटीज उन्होंने बताई फर्स्ट एग्जांपल में, टी वाले एग्जांपल में, कि इनविटेशंस हम सेंड कर रहे हैं, टी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्नैक्स लेके आ रहे हैं और टी को सर्व कर रहे हैं. तो टी सर्विंग, इनविटेशंस और प्रिपरेशन ऑफ टी एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि अगर हम इनविटेशन ही नहीं भेजेंगे तो हमारी पार्टी में कोई भी नहीं आएगा, टी प्रिपेयर नहीं करेंगे तो सर्व कैसे करेंगे. तो ये बहुत सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, और जो एक्टिविटी और जो पाथ नेटवर्क में इन एक्टिविटीज को बताता है, इनकी प्रेसिडेंस बताता है, वो हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है. टाइम ड्यूरेशन ऑफ पाथ इज द सम ऑफ एक्टिविटी टाइम्स ऑफ द एक्टिविटीज फॉर्मिंग द पाथ. टाइम ड्यूरेशन जो होती है किसी पाथ की वो एक्टिविटी टाइम का सम होती है जो कि एक पाथ फॉर्म करती है. The path or the paths with the largest time duration in the network are called critical path. वो पाथ जिनका टाइम ड्यूरेशन सबसे बड़ा होता है एक नेटवर्क में उन्हें क्रिटिकल पाथ कहते हैं. Slack. In the computation of activity times,
We observed that slack or total float in an activity is the difference between its latest start time and its earliest start time. जो एक्टिविटी टाइम की कंप्यूटेशन है वो हम ऑब्जर्व करते हैं स्लैक टाइम या टोटल फ्लोट टाइम के थ्रू. तो ये जो फ्लोट टाइम होता है वो डिफरेंस होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का. It signifies the delay which is permitted in the completion time of that activity without affecting the project completion. The delay can be either due to delay in completion of its preceding activities or in the execution of these activities. Program evaluation and review technique means PERT. ये जो PERT होता है ये एक चार्ट की फॉर्म में होता है जो बताता है कि कौन सी एक्टिविटी हमारी मोस्ट क्रिटिकल है परफॉर्म करने के लिए. CPM is an effective tool for project planning and control when activities time are known with certainty. However, in certain projects like research and development projects, it seems unrealistic to assume that we can know with the certainty the time durations in which activities can be completed. कुछ केसेस में हमारे पास में जो टाइम है किसी पर्टिकुलर जॉब के कंप्लीट होने का वो सर्टेन होता है और कुछ केसेस में नहीं होता. जिन केसेस में टाइम सर्टेन होता है किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने का वहां हम क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करते हैं और जहां पे ये अनरियलिस्टिक होता है टाइम वहां पे हम PERT यूज करते हैं. Time estimates in PERT. In PERT, for each activity, 3 times estimates are made. These estimates are TM means most likely time, the time which is most frequently used by activity. Next is optimistic time. TO means the time by which activity can be completed if everything went well. And last is permissive time, TP, the time by which the activity will get completed even under adverse condition. Time cost relationship and project crashing. In addition to time management, cost plays an important role in any project. टाइम मैनेजमेंट के अलावा जो कॉस्ट है किसी प्रोजेक्ट की वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. The project cost can be classified into two groups. First is direct activity cost and second is indirect project cost. जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है हम उसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है डायरेक्ट एक्टिविटी कॉस्ट. ये होती है आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्टिविटी. ये जो डायरेक्ट एक्टिविटी कॉस्ट होती है ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जहां पे हम कॉस्ट को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं किसी एक्टिविटी से. दस डायरेक्ट लेबर, मटेरियल कंज्यूम्ड, रेंटल चार्जेस फॉर द इक्विपमेंट एक्सेट्रा विल फॉर्म पार्ट ऑफ दीज कॉस्ट. Usually, the activity's duration can be reduced by increasing the direct activity cost. हम इन एक्टिविटी ड्यूरेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्ट एक्टिविटी कॉस्ट को इंक्रीज करके. फॉर एग्जाम्पल, बाय आस्किंग द लेबर टू वर्क विद OT और विद एफिशिएंसी बोनस फॉर फास्टर वर्क एक्सेट्रा. तो इससे क्या होता है जो हमारी टाइम कॉस्ट रिलेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है. इसका एक एग्जांपल है कि हम अपने लेबर से कहें कि आप ज्यादा काम करो और उसके लिए OT लो. OT मींस ओवर टाइम लो. तो इससे क्या होगा हमारा काम ज्यादा से ज्यादा होगा और एफिशिएंसी जो बोनस है किसी भी काम के करने के लिए वो भी इंक्रीज होगी. रिसोर्स एलोकेशन. The analysis up to this point has been based on the assumptions that if its predecessors were completed, an activity could begin. Underlying these assumptions is the fact that sufficient resources will be able to start activities simultaneously. जो analysis होता है इस point तक वो हमारा based होता है assumptions पे कि predecessors के complete होने का time क्या है या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी कब बिगिन होगी. ये जो अंडरलाइन एजम्पशंस होती हैं वो फैक्ट्स होते हैं
इसी सफिशिएंट रिसोर्स के लिए और अवेलेबल स्टार्ट एक्टिविटीज के लिए. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम ऑफ द रिसोर्सेज में बी अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी. और एक्चुअल केसेस में क्या होता है, प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज आर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, स्किल्ड मैन पावर, फाइनेंसेस एसेट्रा. और कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं इन रिसोर्सेज के वो होते हैं कि इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है हमारे पास में, या फिर स्किल्ड मैन पावर चाहिए जिसकी जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं, फाइनेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं. ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं. एन एफिशिएंट मैनेजर विल लाइक टू apportion resources in such a way that increases in project duration is as low as possible. जो हमारा एफिशिएंट मैनेजर है उसका ये काम होता है कि इन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करे अपनी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कि हमारी जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो और वो जो कॉस्ट है उससे एसोसिएटेड वो कम से कम लगे. Many heuristic methods have been developed for such resource allocation problems. While such methods cannot guarantee that the solution obtained is best possible, they usually provide good solutions. उन मेथड्स के लिए जहाँ पे हम गारंटी नहीं कर सकते कि ये जो सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया वो बेस्ट पॉसिबल है, वहाँ पे हम गुड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. बेस्ट नहीं है तो हम गुड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. A simple heuristic rule will as follows. एक simple जो heuristic rule है वो है step 1 allocate resource serially in time. हम resources को serially allocate कर दें. This is start one of the first time period and schedule all activities possible with the resource available. Then do same for the second time period and so on. Means कि हम serially काम कर रहे हैं, जिस जॉब को रिसोर्स चाहिए हम उसे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. स्टेप 2 में क्या है, when several activities compete for the same reason or same resources, give preference to the activities with the least slack. Recompute the slacks in the all activity. स्टेप 2 में क्या करते हैं कि उन एक्टिविटीज को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनका सिलेक्ट टाइम कम है. तो सबसे पहले रिसोर्सेज वो जॉब्स लेंगी या वो एक्टिविटीज लेंगी जिनका सिलेक्ट टाइम कम है. और लास्ट स्टेप है रीशेड्यूल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज इफ पॉसिबल टू फ्री रिसोर्सेज फॉर शेड्यूलिंग क्रिटिकल और नॉन स्लैक एक्टिविटीज. हमें अपनी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को रीशेड्यूल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से शेड्यूल कर सकें क्रिटिकल या फिर नॉन स्लैक एक्टिविटीज के लिए. प्रोजेक्ट अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को अपडेट और मॉनिटर करें. फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ अबव टेक्निक्स इट इज एसेंशियल दैट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस शुड बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड. जो हमने ऊपर टेक्निक्स डिफाइन करी उनके इफेक्टिव यूज के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए. लाइक फॉर द एग्जाम्पल टी मेकिंग, अगर हमें सारे प्रोसेस मॉनिटर करेंगे तो हमारी जो पार्टी है वो बहुत अच्छी हो सकती है. टी पार्टी जो भी हमने अरेंज करी है कि हमने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को इनवाइट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रिपरेशन ऑफ टी है वो भी लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए. तो इस तरीके से हमें कुछ क्राइटेरियाज को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि जो हमारी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो हम अच्छे से या फिर इफेक्टिवली यूज कर सकें उसको. एज एंड व्हेन there is a change in time schedule of any activity, the project network should be updated and new time schedule finalized. और कभी भी अगर किसी एक्टिविटी का टाइम शेड्यूल चेंज होता है तो हमें पूरे प्रोजेक्ट नेटवर्क को भी अपडेट करना चाहिए नए टाइम शेड्यूल के साथ. मीन्स एग्जाम्पल, अगर आपकी पार्टी की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं तो हमें पूरे प्रोसेस को रिपीट टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. मींस पहले हमारी पार्टी 4 बजे की थी और हम टी प्रिपरेशन 4:30 बजे कर रहे थे और नए सिनेरियो में क्या हुआ, जब टाइम चेंज हुआ तो पार्टी 5 बजे की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी सारी एक्टिविटीज को भी चेंज करना पड़ेगा.
Nowadays, with the most of the computers including PC, well-written CPM1 PERT packages including project crashing and resource allocations are available. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is, what do you understand by Slack? Construct an example and show how you can use the knowledge of Slacks for better project management. And next one is, under what circumstances would you use PERTs as opposed to CPM in project management? Give some examples of projects where each would be more applicable than the other. Thanks and have a nice day.